हेलो एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा था ऑडिट ऑफ एनबीएफसी का, जिसमें हमने एनबीएफसी की इंट्रोडक्शन, एनबीएफसी के रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन, टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, प्रूडेंशियल नॉर्म्स और ऑडिट प्रोसीजर, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स, इन टॉपिक को कवर अप किया था लास्ट सेशन में। अब इस सेशन के अंदर हमारा जो टॉपिक होगा डिस्कशन का, वो दो मेन टॉपिक रहेंगे। पहला चेकलिस्ट इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी की, एंड सेकंड वन एनबीएफसी जो ऑडिटर रिपोर्ट्स हैं रिजर्व बैंक की डायरेक्शंस, उसके अंदर किन किन पॉइंट्स के ऊपर रिपोर्टिंग होगी। स्टार्ट करते हैं। ऑडिट चेकलिस्ट इन केस ऑफ एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। मैंने सारे पॉइंट्स को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पॉइंट्स और दूसरा क्रेडिट रिलेटेड पॉइंट्स। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पॉइंट्स में फर्स्ट वन फिजिकल वेरिफिकेशन। ऑडिटर शुड physically verify the securities held by the NBFC, and in case the securities are lodged with an institution or a bank, that means investments are lying with the third party. In that situation, a certificate from the bank or the institution to that effect must be verified. सेकेंड पॉइंट इसके अंदर आ जाता है इनकम रिकॉग्निशन का। अब इन्वेस्टमेंट्स की बात है तो इन्वेस्टमेंट के केस में इनकम किस बेसिस पर रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। डिविडेंड इनकम की बात करें तो डिविडेंड इनकम यदि वो डिक्लेयर की जा चुकी है इन दैट केस और रिसीव्ड हो चुकी है, उसको आपको चेक करना है वेयर एवर द डिविडेंड इनकम इज बीइंग डिक्लेयर्ड एंड रिसीव्ड, क्या उसकी एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग बुक्स में हो चुकी है। Verify that dividend income wherever declared has actually been received and accounted for. NBFC prudential norms directions require dividend income on shares of company and income on units of mutual fund किस बेसिस पर रिकॉग्नाइज्ड होगी, कैश बेसिस के ऊपर। However, डिविडेंड के केस में जैसे बैंकिंग कंपनी में हमने पढ़ा था कि डिविडेंड इनकम कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन एक्रूअल बेसिस प्रोवाइडेड द राइट टू रिसीव द डिविडेंड इज एस्टैब्लिश्ड। इसका मतलब कि डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द बॉडी कॉर्पोरेट इन इट्स एजीएम एंड इट्स राइट टू रिसीव द अमाउंट हैज ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड। इनकम फ्रॉम बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, अब इनके ऊपर फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। आप इनको एक्रूअल बेसिस के ऊपर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इफ इंटरेस्ट रेट ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट इज प्री डिटरमाइंड एंड इंटरेस्ट इज सर्विस्ड रेगुलरली एंड नॉट इन अरियर। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि डिविडेंड इनकम और यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड की इनकम शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन कैश बेसिस। However, if the right to receive dividend is established, then dividend income may be recognized on accrual basis. Interest in respect of bonds and debentures, उनको आप accrual basis पर recognize कर सकते हैं, provided the rate is predetermined and interest is being serviced regularly. Third point, authorization. Purchase and sale of investments are duly authorized by the board, and for that purpose check the or verify the minutes book of board meeting. Classification, check from the board resolution or obtain a management certificate about the classification whether the investments are held for long term purpose or for short term purpose. Ascertain from the board resolution or obtain a management certificate to the effect that investments so acquired are current or long term. Thereafter, valuation. Valuation में norms comply हुए हैं and उन्हीं norms की according valuation की गई है। Check
whether the investments has been valued in accordance with the NBFC prudential norms direction and adequate provision for fall in value of investments has been created wherever applicable. Compliance of Accounting Standard 13. To the extent the provisions of Accounting Standard 13 are not inconsistent with the directions, ensure the compliance of those provisions. Ascertain whether the requirements of AS 13 accounting for investments or any other accounting standard as applicable, to the extent they are not inconsistent with the directions, have been duly complied with by the NBFC. External confirmations in respect of shares, debentures, other securities which are being held in demat form, that means which are held through the depository, obtain a confirmation from the depository regarding these investments being held on behalf of the NBFC. तो बहुत जनरल पॉइंट्स हैं इन्वेस्टमेंट्स के रिलेशन में, फिजिकल वेरिफिकेशन का, इनकम रिकॉग्निशन का, ऑथोराइजेशन का, क्लासिफिकेशन का, वैल्यूएशन का एंड एक्सटर्नल कंफर्मेशंस का। इसी तरह से क्रेडिट के रिलेशन में कि जो एडवांसेस दिए गए हैं बाय द एनबीएफसी, फर्स्ट वन सैंक्शनिंग, whether the credit facilities extended by the NBFC are duly sanctioned by the appropriate person. Examine whether each loan or advance have been properly sanctioned. Verify the conditions that are being attached to the sanction of each loan. अब उसमें कंडीशंस हो सकती हैं एज टू रीपेमेंट, कंडीशंस एज टू सिक्योरिटी, कोलेट्रल सिक्योरिटी, प्राइमरी सिक्योरिटी, मार्जिन मनी, उन सब कंडीशंस को चेक करिए क्या जो कंडीशंस इंपोज की गई हैं वो एप्रोप्रिएट हैं या नहीं है। लाइक लिमिट्स ऑन बोरोविंग्स, नेचर ऑफ सिक्योरिटी, इंटरेस्ट, टर्म्स ऑफ रीपेमेंट एटसेट्रा। नेक्स्ट वन सिक्योरिटी, यदि क्रेडिट फैसिलिटीज को एक्सटेंड किया गया है तो इन सिचुएशंस में आपको चेक करना है कि उन क्रेडिट फैसिलिटीज को, एडवांसेस को, उनको बैक किस तरह की सिक्योरिटी कर रही है, प्राइमरी सिक्योरिटी, सेकेंडरी सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी बैंक एनबीएफसी के पोजेशन में है, सिक्योरिटी की वैल्यू क्या है, मार्जिन मनी कितना रखा गया है। वेरीफाई द सिक्योरिटी ऑब्टेन्ड एंड द एग्रीमेंट्स entered into, if any, with the concerned parties in respect of the advances given. Nature, value of security को determine करिए and the net worth of the borrower to determine the extent to which an advance could be considered realizable. जैसे बैंकिंग के अंदर हमने पढ़ा था कि एक एडवांस उसके लिए सिक्योरिटी है, बट सिक्योरिटी की रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, टू दैट एक्सटेंट ओनली द एडवांसेस आर कंसीडर्ड सिक्योर्ड। लोन अगेंस्ट ऑन शेयर्स, ये हमने प्रूडेंशियल नॉर्म्स के अंदर भी पढ़ा था, एक एनबीएफसी अपने शेयर्स के अगेंस्ट लोन ग्रांट नहीं कर सकती। वेरीफाई दैट एनबीएफसी हैज नॉट एडवांस्ड एनी लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ इट्स ओन शेयर्स। Compliance of prudential norms. Check whether the NBFC has not lent or invested in excess of the specified limits to any single borrower or group of borrowers. इसके अंदर कुछ लिमिट्स होती हैं कि आप मैक्सिमम एक पर्सन को किस एक्सटेंट तक लोन दे सकते हैं या एक एंटिटी में टू व्हाट एक्सटेंट आप डिपॉजिट्स कर सकते हैं। कुछ जगह पर ये परसेंटेज 15% की है, कुछ जगह पर 25% की है, कुछ जगह पर 40% की है। ये वेरी करती है परसेंटेजेस, वो परसेंटेजेस एज सच आपको कवर अप नहीं करनी, बट इन जनरल आपको इंश्योर करना है कि प्रूडेंशियल नॉर्म्स की कंप्लायंस हो रही है। सिंगल बोरोवर, एक सिंगल पर्सन, उसको कितना लोन दिया गया है
उसके पूरे ग्रुप को कितना लोन दिया गया है, उसकी एंटिटी में कितनी इन्वेस्टमेंट की गई है, बोरोइंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट दोनों का एग्रीगेट कितना है। अप्रेजल एंड फॉलो अप सिस्टम, एक एडिक्वेट सिस्टम होना चाहिए क्रेडिट फैसिलिटीज को ग्रांट करते वक्त। जब भी आप किसी क्रेडिट फैसिलिटीज को ग्रांट करते हैं, एक्सटेंड करते हैं किसी पर्सन को, तो उस पर्सन की नेटवर्थ आपको चेक करनी है, उसकी एप्लीकेशन को प्रॉपर तरीके से अप्रेज करना है टू डिटरमिन क्या इस पर्सन को लोन देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए। देना चाहिए तो उस लोन का मैक्सिमम कितना अमाउंट उस पर्सन को लोन दिया जा सकता है। तो ये सब चीजें आपको चेक करनी है, क्या एक एडिक्वेट सिस्टम टू अप्रेज द लोन एप्लीकेशंस एंड फॉलो अप फॉर द रिकवरी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। वेरीफाई वेदर द एनबीएफसी हैज एन adequate system of proper appraisal and follow up of loan and advances. In addition, analyze the trend of its recovery performance to ascertain that NBFC में unduly high level of NPAs नहीं है। क्लासिफिकेशन NBFC को भी अपने एडवांसेस को क्लासिफाई करना है इनटू स्टैंडर्ड, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेट्स। चेक द classification of loans and advances made by the NBFC into standard, substandard, doubtful and lost, and whether the provisions that are being made against these advances are in compliance with the prudential norms, and adequacy of the provisions for bad and doubtful debt as required by NBFC prudential norms directions। तो ये हमारे मेन पॉइंट से इन रिलेशन टू चेकलिस्ट इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज क्वेश्चन आ सकता है, और यदि पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पॉइंट आ जाएं तो फिर आपको ये लिखना है, क्रेडिट से रिलेटेड पॉइंट आए ये लिखना है। बट यदि क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी पूरा वर्ड यूज किया गया हो और कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी गई हो, डिपेंडिंग अपॉन मार्क्स 4 नंबर का आता है, 3 पॉइंट इन्वेस्टमेंट के डाल दो, 3 पॉइंट क्रेडिट के डाल दो। 6 नंबर का आता है तो 4 पॉइंट दोनों के डाल दो। 6 से ज्यादा का तो खैर एक्सपेक्टेड है नहीं। नाउ इसके बाद अब टॉपिक है हमारा एनबीएफसी ऑडिटर्स रिपोर्ट रिजर्व बैंक डायरेक्शंस 2016। जैसे कारों की रिपोर्टिंग है, एलएफएआर की रिपोर्टिंग होती है, उसी तरह से बड़े सारे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ऑडिटर को रिपोर्टिंग करनी है इस डायरेक्शंस के अंडर। पहला केस ऑल एनबीएफसी, इसमें ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट क्या कंपनी ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ले लिया है फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यदि कंपनी ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ले लिया है, क्या कंपनी एंटाइटल्ड है टू कंटिन्यू टू होल्ड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स असेट इनकम पैटर्न, दैट इज 50-50 टेस्ट जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर पढ़ा था। वेदर द एनबीएफसी इज मीटिंग द required net owned fund requirement as laid down in the directions। तो ये मैंने रजिस्ट्रेशन के जो पॉइंट्स हैं ये पहले भी आपको यहां पर करवा रखे हैं, रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसी के अंदर। तो इन्हीं पॉइंट्स को ऑडिटर को रिपोर्ट करना है अंडर दीज डायरेक्शंस। क्या कंपनी ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ले लिया है? क्या कंपनी इस सर्टिफिकेट को कंटिन्यू करने के लिए एंटाइटल्ड है? क्या कंपनी नेट ओन फंड के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है? देयर आफ्टर फिर जो रिपोर्टिंग है वो इन केस ऑफ एनबीएफसी जिन्होंने पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रखे हैं उनकी रिपोर्टिंग है। उन केसेस में ऑडिटर को किन किन पॉइंट्स पर रिपोर्ट करना है। नंबर 1,
जो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट किए गए हैं बाय द कंपनी, क्या वो विद इन द लिमिट एज पर एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट रिजर्व बैंक डायरेक्शंस 2016 है, बेस्ड अपॉन क्रेडिट रेटिंग ऑफ द कंपनी। क्या पब्लिक डिपॉजिट्स यदि परमिसिबल अमाउंट से ज्यादा हैं उनको रेगुलराइज किया गया है? यदि आपको ध्यान हो तो मैंने डिपॉजिट के अंदर क्रेडिट रेटिंग में कराया भी था ये पॉइंट आपको, कि यदि क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हो जाती है तो उस केस के अंदर आपको इमीडिएट स्टेप लेने होते हैं। यू हैव टू स्टॉप एक्सेप्टिंग फ्रेश पब्लिक डिपॉजिट्स। आपको 15 दिन के अंदर अंदर रीजनल ऑफिस में रिपोर्ट करना है और एग्जिस्टिंग डिपॉजिट वो मैच्योरिटी तक चलेंगे। तो वही पॉइंट्स यहां पर कवर अप किए गए हैं। क्या पब्लिक डिपॉजिट्स परमिसिबल अमाउंट से यदि ज्यादा हैं उनको रेगुलराइज किया गया है? थर्ड वन, वेदर द एनबीएफसी इज एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट विदाउट मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, यदि हां उसकी रिपोर्टिंग करिए। वेदर द कैपिटल एडिक्वेसी रेशो जो आरबीआई के पास रिटर्न सबमिट की गई है उसके अंदर जो डिस्क्लोज की गई है वो सही तरीके से डिटरमाइंड की गई है। वेदर द क्रेडिट रेटिंग जो हर एक डिपॉजिट स्कीम के रेफरेंस में असाइन की गई है बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक्चुअली इज इन फोर्स, और जो एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है वो उस लिमिट से ज्यादा नहीं है विच इज बीइंग स्पेसिफाइड बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्या कंपनी ने वायोलेशन किया है किसी भी रेस्ट्रिक्शन का ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स? क्या कंपनी ने अपने डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट्स ड्यू डेट पर पे करने में डिफॉल्ट किया है? Whether the company has complied with the prudential norms on income recognition, asset classification, provisioning. Whether the company has complied with the liquid assets requirement, जैसे बैंक के केस में statutory liquidity ratio होती है. Whether the return on deposit is being submitted or furnished to the bank within the stipulated time period. Quarterly return on prudential norms furnished to the bank within the stipulated period. In case of opening of new branches or offices to collect the deposits or closure of existing branches, or in case of appointment of agent, क्या कंपनी ने रिक्वायरमेंट्स का कंप्लायंस किया है? नाउ अब देखो जरा, इसमें जितने पॉइंट्स आ गए सारे के सारे काफी जनरल नेचर के पॉइंट्स हैं। क्या कंपनी के डिपॉजिट्स विद इन द लिमिट्स हैं? परमिसिबल लिमिट से ज्यादा हैं तो क्या उनको रेगुलराइज किया गया है? क्या डिपॉजिट विदाउट मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग के एक्सेप्ट किए जा रहे हैं? कैपिटल एडिक्वेसी रेशो करेक्टली डिटरमाइंड की गई है? Credit rating is in force and aggregate amount of deposit are within the limit based upon the credit rating. Any violation as to the restrictions on acceptance of public deposit, any kind of default in payment of depositors as to the interest and principal amount, compliance of prudential norms on income recognition, asset classification, provisioning norms, compliance of liquid assets requirement, furnishing of returns on deposit and quarterly returns on prudential norms, intimation as to opening of new branches, offices or closure of existing office, appointment of agent. तो ये पॉइंट्स हैं जो ऑडिटर को एडिशनली रिपोर्ट करना है इन केस ऑफ एनबीएफसी विच एक्सेप्ट्स द पब्लिक डिपॉजिट्स। ये पॉइंट्स ऊपर वाले तो चाहे कंपनी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है नहीं करती है हर एक केस में रिपोर्ट होंगे, बट जो नीचे 12 पॉइंट्स हैं ये जो कंपनी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है उसके केस में आएंगे।
लर्निंग आपको सारों की करनी है। 5-6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, जितने याद आए लिख दीजिएगा। ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन केस ऑफ एनबीएफसी जो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है, वहां क्या क्या रिपोर्टिंग ऑडिटर को करनी होगी। क्या बीओडी ने रिजोल्यूशन पास किया है फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट? रिजोल्यूशन पास हो गया नॉन एक्सेप्टेंस का, क्या उसके बावजूद वायोलेशन हुई है? मींस क्या कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं? क्या कंपनी ने प्रूडेंशियल नॉर्म्स का कंप्लायंस किया है एज टू इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग? इन रिस्पेक्ट ऑफ सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी, क्या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो करेक्टली डिटरमाइन की गई है? एनुअल स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल फंड रिस्क असेट रेशियो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में बैंक के पास सबमिट कराई गई है? एंड whether the NBFC has correctly classified as the NBFC microfinance institutions. ये पॉइंट एज सच आपको लर्न करने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि वो एग्जाम में क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली पूछता है what are the key points that the auditor should report in case of an NBFC which is not accepting the public deposits, तो आप इन 5 पॉइंट्स को लिखेंगे। बट समटाइम्स डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स क्वेश्चन इसी टॉपिक पर आता है, नॉट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट, बट इसके अंदर आप इन 5 पॉइंट्स के साथ साथ जो ये 3 पॉइंट हैं रजिस्ट्रेशन के एंड नेट ओन फंड के, इनको भी साथ में स्पेसिफाई कर सकते हैं। देयर आफ्टर रीजंस टू बी स्टेटेड फॉर अनफेवरेबल और क्वालिफाइड स्टेटमेंट। यदि ऑडिटर रिपोर्ट में पैरा 3 के किसी भी मैटर पर, ये ऊपर जितनी बातें लिखी गई थी ये सारी पैरा 3 पर थी, कोई भी कमेंट अनफेवरेबल या क्वालिफाइड है, ऑडिटर रिपोर्ट शैल स्टेट द रीजंस फॉर सच अनफेवरेबल और क्वालिफाइड स्टेटमेंट एज द केस में बी। Where the auditor is unable to express any opinion on any of the matter as specified in para 3 above, auditor report shall indicate such fact together with the reasons therefore. Reasons के साथ आपको अपनी रिपोर्ट में इन सब के फैक्ट्स को बताना है। पैरा नंबर 5 एक्सेप्शन रिपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लर्निंग में मुश्किल रहेगी, बट डायरेक्शंस है सारी, नाम है उनके, आपको एज सच याद करने पड़ेंगे। वेयर इन द केस ऑफ ए एनबीएफसी द स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनी ऑफ द आइटम जो पैरा 3 में डिफाइंड की गई है वो अनफेवरेबल एंड क्वालिफाइड है, या ऑडिटर की ओपिनियन में कंपनी ने इन डायरेक्शंस का कंप्लायंस नहीं किया है, ये ऑडिटर की ऑब्लिगेशन है, इनकी एक रिपोर्ट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ सच अनफेवरेबल क्वालिफाइड स्टेटमेंट्स एंड नॉन कंप्लायंस आरबीआई के रीजनल ऑफिस के अंदर, जिस ऑफिस की जुरिस्डिक्शन में ये एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, उसके पास सबमिट करें। अब ये जो डायरेक्शंस के नाम दिए गए हैं ये थोड़े से आपको लिए मुश्किल होगा, बट याद करने पड़ेंगे। नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 3B ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स रिजर्व बैंक डायरेक्शंस 2016, एनबीएफसी नॉन सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी रिजर्व बैंक डायरेक्शंस 2016 and NBFC systemically important non-deposit taking company and deposit taking company reserve bank directions 2016। ये नाम आपको एज सच याद करने पड़ेंगे। कुछ टॉपिक्स में मैं आपको कहता हूं कि रिस्क ले लो, छोड़ दो, बट इस टॉपिक में नहीं कहूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये नाम लर्न करने ही पड़ेंगे।
ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने नहीं चाहिए जहां पर इन चीजों को क्रैम करना पड़ रहा है, रटना पड़ रहा है, बट एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है। और यदि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है देन आपको फिर ये सारे के सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए, क्योंकि जो चेकिंग होगी वो एग्जैक्ट इन्हीं पॉइंट्स के बेस के ऊपर चेकिंग होगी। और यदि आपने इन पॉइंट्स को लिख दिया, एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा, हां देखो बच्चे ने कितना रटा हुआ है। ये कोई अंडरस्टैंडिंग वाली तो चीजें हैं नहीं, रटने वाली ही चीजें हैं। तो मैं यही कहूंगा मार्क्स जो मिल रहे हैं वो रटने के, क्रैमिंग के मिल रहे हैं, बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब क्रैमिंग रिक्वायर्ड है तो आपको करनी पड़ेगी। सो ये हमारा टॉपिक था एज टू एनबीएफसी ऑडिटर रिपोर्ट रिजर्व बैंक डायरेक्शंस 2016 का। नाउ इसके बाद इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है जिसमें कारो के प्रोविजन है, इंड एएस के प्रोविजन है और शेड्यूल 3 के कुछ प्रोविजंस है। तो इसको मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो के अंदर कवर अप कर रहा हूं। अभी इस वीडियो में मैंने आपके साथ दो चार्ट डिस्कस किए हैं, एक ऑडिट चेकलिस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी का और दूसरा एनबीएफसी ऑडिटर रिपोर्ट रिजर्व बैंक डायरेक्शंस 2016 का। दोनों टॉपिक लर्निंग वाले हैं और आप इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेना इंपॉर्टेंट है, राइट? अच्छा चलो एक काम करते हैं, लास्ट का जो टॉपिक है ये भी मैं अभी आपको साथ साथ करा देता हूं। इस चार्ट में हमारा पहला जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज कंप्लायंस विद कारो। कारो 2016 एंड कारो 2020 दोनों के अंदर ही ये जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है इन पर्टिकुलरली पैरा 3 के क्लॉज नंबर 16 में ही फॉल करती है, जहां पर कारो के अंडर ऑडिटर को रिपोर्ट करना है क्या कंपनी सेक्शन 45IA ऑफ आरबीआई एक्ट के अंदर कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी था। यदि हां तो क्या कंपनी ने रजिस्ट्रेशन कराया है? और इसके रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखे हैं कि एक एनबीएफसी यदि उसका प्रिंसिपल बिजनेस फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है, दैट मीन्स वो 50-50 टेस्ट को के क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। मीनिंग यदि कंपनी के टोटल असेट्स के 50% से ज्यादा असेट्स फाइनेंशियल असेट्स हैं, कंपनी की ग्रोस इनकम की 50% से ज्यादा इनकम इन फाइनेंशियल असेट से होती है, देन वी कैन से दैट प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ दिस कंपनी इज ऑफ फाइनेंसिंग नेचर एंड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड। तो वही पॉइंट्स यहां पर लिखे हुए हैं। एज पर सेक्शन 45IA ऑफ आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट, नो एनबीएफसी इज अलाउड टू कमेंस और कैरी ऑन अ बिजनेस ऑफ एनबीएफसी विदाउट ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द आरबीआई। Registration is required if financing activity is the principal business of the company. And financing activity principal business है कब? यदि कंपनी के फाइनेंशियल असेट्स कंपनी के टोटल असेट्स के 50% से ज्यादा है एंड इनकम फ्रॉम सच असेट्स टोटल इनकम के 50% से ज्यादा है। दिस इज पॉपुलरली नोन एज 50-50 टेस्ट। So now, once it is established that company is a NBFC and company is required to get itself registered because कंपनी के फाइनेंशियल
असेट्स का और फाइनेंशियल इनकम का 50-50 का जो टेस्ट का क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है, देन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट यस रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। अब चेक करिए क्या रजिस्ट्रेशन लिया गया, यदि लिया गया तो उसकी एक कॉपी ले लो और यदि नहीं लिया गया उसके रीजन लिखो। एग्जामिन द ट्रांजैक्शंस ऑफ द कंपनी with relation to the activities covered under the RBI Act to determine क्या कंपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी में एंगेज्ड है, यदि हां क्या फाइनेंशियल असेट्स टोटल असेट्स के 50% से ज्यादा एंड इनकम फ्रॉम सच फाइनेंशियल असेट्स टोटल इनकम की 50% से ज्यादा है, नेट ऑन फंड्स ऑफ द कंपनी exceed such amount so as to require the company to get itself registered, minimum fund 2 करोड़ के होने जरूरी है। ascertain क्या कंपनी ने रजिस्ट्रेशन लिया नहीं लिया, then ascertain the reasons from the management and document those reasons. Auditor report under CARO shall incorporate the following: whether the registration is required under section 45IA, if yes whether it has obtained the registration, if no ascertain the reasons। तो ये हमारा कारो का टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोसीजर एंड रिपोर्टिंग एग्जाम में पूछी जा सकती है। नो इसके बाद फिर इसके अंदर जो टॉपिक है वो इंड एएस का एंड शेड्यूल 3 का है। इंड एएस रूल्स के अकॉर्डिंग एनबीएफसीज को इंड एएस की कंप्लायंस करनी है। कौन कौन सी एनबीएफसीज को? ऑल लिस्टेड एंड अनलिस्टेड एनबीएफसी जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा की है, एंड होल्डिंग सब्सिडियरी ज्वाइंट वेंचर एंड एसोसिएट कंपनी ऑफ सच एनबीएफसी, इनको कंप्लायंस करनी है from the accounting periods commence from 1st April 2018। इसके अलावा अदर लिस्टेड एनबीएफसी जिनकी नेट असेट्स नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है बट 500 करोड़ से कम है, 500 करोड़ या उससे ज्यादा थी, 500 करोड़ या उससे ज्यादा थी तो इनके लिए तो 18 से ही इंड एएस की एप्लीकेबिलिटी आ गई, बट 250 या उससे ज्यादा बट लेस देन 500 है और इनकी होल्डिंग सब्सिडियरी एंड एसोसिएट्स को फिर 2019 से कंप्लायंस करनी है। ये ऑलरेडी वैसे आपने इंड एएस के अंदर पढ़ भी रखा होगा। देयर आफ्टर फिर इसमें एक और छोटा सा टॉपिक है शेड्यूल 3 का। शेड्यूल 3 की 3 डिवीजन है। Schedule 3 divided into 3 divisions. Wide notification dated 11th October 2018. Division 1 उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कवर अप किया गया है फॉर द कंपनीज जिनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनानी है। डिवीजन 2 वो कंपनीज जिनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड एएस रूल्स के हिसाब से बनानी है। डिवीजन 3 वो कंपनीज जो एनबीएफसी हैं और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनको इंड एएस के हिसाब से बनानी है। कौन सी एनबीएफसी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड एएस के हिसाब से बनानी है? वो ये सब एंटिटीज है आज की डेट में। अब जो डिवीजन 2 डिवीजन 3, डिवीजन 2 में भी इंड एएस की बात की गई है, डिवीजन 3 में भी इंड एएस की बात की गई है। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिवीजन 2 की एप्लीकेबिलिटी अदर देन एनबीएफसी की है, डिवीजन 3 के अंदर एनबीएफसी को कवर अप किया गया है। डिवीजन 3 में एनबीएफसी कवर्ड है, डिवीजन 2 के अंदर ऑल कंपनी जिनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड एएस पर बनानी है। नाउ इसका क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3, दोनों ही इंड एएस पर है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस है
डिवीजन 2 के, डिवीजन 3 के जो शेड्यूल 3 में बताए गए हैं। प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट डिवीजन 3 की दे आर सिमिलर टू डिवीजन 2 टू ए लार्जर एक्सटेंट। हाउएवर कुछ डिफरेंसेस हैं जिनको आपको लर्न करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वैसे आपने जब शेड्यूल 3 किया होगा एफआर के अंदर, वहां पर भी स्टडी किया होगा, बट मैं एक बार आपको इनको रीड करा देता हूं। फर्स्ट पॉइंट है, एनबीएफसीज उनको अलाउ किया गया है वो बैलेंस शीट आइटम को लिक्विडिटी के ऑर्डर में लगा सकते हैं, लेकिन डिवीजन 2 में यह चीज परमिटेड नहीं है। एनबीएफसी बैलेंस शीट की आइटम को फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल में क्लासिफाई करती हैं, जबकि डिवीजन 2 के अंदर वो करंट एंड नॉन करंट में क्लासिफिकेशन होती है। एनबीएफसी उनको सेपरेट डिस्क्लोजर देना है अबाउट एनी आइटम ऑफ अदर इनकम और अदर एक्सपेंडिचर विच एक्सीड्स 1% ऑफ टोटल इनकम। लेकिन जब मैं डिवीजन 2 की बात करता हूं, वहां पर एनी आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर विच एक्सीड्स 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 10 लाख विच एवर इज हायर है। डिफरेंस क्या आया? जब मैं शेड्यूल 3 की डिवीजन 3 की बात करता हूं तो सेपरेट डिस्क्लोजर इनकम और एक्सपेंसेस का उन आइटम का है जो एक्सीड करती हैं टोटल इनकम के 1% को, जबकि डिवीजन 2 में डिस्क्लोजर उन आइटम का है जो एक्सीड करती हैं 10 लाख रुपीज और 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विच एवर इज हायर को। पॉइंट नंबर 3, NBFCs are required to separately disclose under the receivable any debt due from LLP in which its director is a partner or member। ऐसी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट डिवीजन 2 के अंदर नहीं है। NBFCs are also required to disclose the items comprising revenue from operation and other comprehensive income on the face of the statement of profit and loss instead of showing those only as part of the notes। नंबर 4, separate disclosure of trade receivables which have significant increase in credit risk and credit impaired also required in case of NBFCs। Any conditions or restriction for distribution attached to statutory reserve, उसका separate disclosure required है in the notes as per the requirement of relevant statute। ये चीज NBFC के केस में रिक्वायर्ड की गई है, बट डिवीजन 2 के अंदर ये रिक्वायरमेंट्स नहीं है। सो ये एक पॉइंट्स हैं, इनकी डिटेल आप लोगों ने एफआर में पढ़ भी रखी होगी, तो आपको ऑडिट के पेपर के लिए इन पॉइंट्स की लर्निंग करनी है। समराइज करा देता हूं एक बार जल्दी से। एनबीएफसी अपनी बैलेंस शीट आइटम को लिक्विडिटी के ऑर्डर में लगा सकती है, लेकिन अदर कंपनीज नहीं कर सकती। एनबीएफसी अपनी बैलेंस शीट आइटम को फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल में डिवाइड करेगी, जबकि अदर कंपनीज करंट एंड नॉन करंट में करेगी। अदर इनकम एंड अदर एक्सपेंडिचर जो टोटल इनकम के 1% से ज्यादा है, उनका सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है एनबीएफसी के केस में। अदर देन एनबीएफसी के केस में डिस्क्लोजर अदर इनकम और एक्सपेंडिचर का रिक्वायर्ड होगा यदि वो आइटम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के 1% और 10 लाख रुपीज विच एवर इज हायर से ज्यादा है। एनबीएफसी के केस में रिसीवेबल्स के अंदर यदि कोई डेट एलएलपी से जिसमें कंपनी के डायरेक्टर पार्टनर या मेंबर है, उसका सेपरेट डिस्क्लोजर देना है। एनबीएफसी के केस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एसपीएल के फेस पर आएगा, ना कि नोट्स के अंदर आएगा। ट्रेड रिसीवेबल जिसमें सिग्निफिकेंट क्रेडिट रिस्क इंक्रीज हुआ है या क्रेडिट इंपेयर्ड हुआ है, रिकवरी मुश्किल हुई है, उसका सेपरेट डिस्क्लोजर चाहिए। स्टैट्यूटरी रिजर्व की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कोई कंडीशन या रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, उसका डिस्क्लोजर भी चाहिए। सो ये पॉइंट थे हमारे, एक कारो का, दूसरा एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एएस का, और तीसरा शेड्यूल 3 का।
तो इनको भी हमने कवर अप कर लिया और इसके साथ एनबीएफसी का चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसके क्वेश्चंस अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं इस चैप्टर में से। तो एक क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड का क्वेश्चन, एक एनबीएफसी में जो ऑडिटर रिपोर्ट रिजर्व बैंक डायरेक्शन है उसके अंदर एनबीएफसी नॉट एक्सेप्टिंग द पब्लिक डिपॉजिट, उसकी रिटन प्रैक्टिस, और एक किसकी करोगे, शेड्यूल 3 के अंदर डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3 के डिफरेंसेस। ये 3-4 क्वेश्चन हैं जिनकी रिटन प्रैक्टिस जरूर करिएगा। राइट, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।